Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, one more day has gone. Now, around 2 months are available for your IBPS PO exam preparation. And that's why each and every minute is important for you. Most of you study at night and late night hours, and that's why I am placing this video at this hour, just to give you right advice at right time. Now, first thing is you have to be very planned and focused. This year competition will be much tougher than preceding year because we are expecting more number of candidates for IBPS PO this year due to lot of unemployment across sectors. And even some candidates, those were selected in preceding SSC selections and got very far-flung places postings. Now they are looking for banking jobs because in banking sometime you may get posting that is near to your native place. So now a new trend is emerging. Even selected SSC candidates, those are uncomfortable at their place of posting, they are now competing for banking exams. It may look to be odd to many people, but since I am in touch with lot of people, and from that sense I am giving you a forewarning that this year competition is going to be tough. And if you waste even a single minute or single hour, you will be left behind. So focus on studies, plan your studies, and execute well your studies so that you are successful and you need not repent after the result. Do whatever you can do. Outside things will change at its own pace, but whatever in your hands, you must do to the optimal level. Things may change around us, things may not change around us. Everybody wants that reforms should happen. People are trying for reforms. We wish all the success that reforms may be put in place. But still, individual effort is equally important. Even if system is reformed and if you are not well prepared, you will be left behind. Because the number of people those will be selected will always be limited. And whatever system is there, only those people will get the selection. Those are working hard during these days. So this is a precious time. Conserve your energies. Don't deflect your energies here and there. Try to retain your energies and stay focused on your studies. You can participate in many activities, but that participation should be for few minutes only. Don't overspend your time in different activities that may be happening around you. Maybe your friends may like to talk to you, maybe some entertainment, maybe some other things. If you limit those activities, that will be in your interest, and if you devote more time on studies, that will be in your interest. God bless you with success. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. IBPS PO एग्जाम में अब पूरे 2 महीने बचे हैं. एक एक मिनट, एक एक क्षण आपके लिए महत्वपूर्ण है. ये चैनल है राइट एडवाइस राइट टाइम का. आज लेट आवर्स में मैं इसीलिए वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि अधिकांश बच्चे इसी समय पढ़ाई करते हैं. आप अगर इन दिनों में आपको अपना वक्त बिल्कुल भी जाया नहीं करना है. ये जो 2 महीने हैं ये आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीने हैं, क्योंकि इस साल का जो कंपटीशन है IBPS PO का पिछले वर्षों से टफर होने की पूरी संभावना है. और उसका कारण ये है कि एक तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होने की संभावना है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है. अक्रॉस सेक्टर्स अनएम्प्लॉयमेंट है. तो इस साल जो
कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे IBPSPO के, वो आंकड़ा पिछले वर्ष से अधिक होने की पूरी संभावना है। दूसरा क्या हुआ है कि जो पिछले कुछ सालों में SSC की सिलेक्शंस हुई हैं, उसमें कई लोगों की पोस्टिंग्स अच्छी नहीं हुई हैं और वो अब अपनी वर्तमान पोस्टिंग से दुखी हैं, वो भी चेंज चाहते हैं। काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, हालांकि आपको अचंभा हो रहा होगा ये जान के कि SSC छोड़ के वो बैंकिंग में क्यों आएंगे, पर ऐसे बहुत कैंडिडेट हैं जो अच्छी पोस्टिंग ना होने की वजह से अब दूसरे विकल्पों को तलाश रहे हैं और वो कैंडिडेट भी इस साल IBPSPO के अंदर बैठेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कई चीज़ें सोशल मीडिया में नज़र नहीं आती हैं, पर जो व्यक्ति के साथ गुजरती है ना, उसी को पता होता है कि मैं कहाँ फंस गया। अगर अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलती है तो नेचुरल है कि उससे निकल के कहाँ जाऊँ, उसकी वो तलाश करता है। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ सारी बातें, ताकि आप इस चीज़ से आपको पता होना चाहिए कि इस साल आपको किस कंपटीशन को झेलना पड़ेगा। अगर आप एक एक मिनट प्लान करेंगे, एक एक मिनट का सदुपयोग करेंगे, तो आप इतने टफ कंपटीशन में भी कामयाब हो सकते हैं। काफ़ी सुधारों के लिए भी लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, हो सकता है सुधार हो जाए, हो सकता है ना हो, पर हम उसके भरोसे नहीं सिर्फ बैठ सकते। हमें अपनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, जो मर्जी सिस्टम हो, क्योंकि जो भी सिस्टम होगा उसमें से सेलेक्ट तो लिमिटेड लोग ही होंगे। जितना मर्जी सिस्टम रिफॉर्म भी हो जाएगा, उसके बावजूद भी जितनी वैकेंसीज हैं उतने लोग ही क्लियर होंगे, बाकी लोग नहीं हो पाएंगे। तो जो ज़्यादा प्रिपेयर्ड होगा, जो अपने आप की अच्छी नॉलेज रखेगा, उसके हमेशा जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। सिस्टम्स में रिफॉर्म होना चाहिए, ज़रूरी है। सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो, वो भी ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आपका अपनी पढ़ाई की तैयारी भी उतनी ही ज़रूरी है। इसलिए आपको अपनी सभी एक्टिविटीज़ को बैलेंस करके चलना है और अपनी पढ़ाई के टाइम को कॉस्ट पर अदर एक्टिविटीज़, मान लो एंटरटेनमेंट है, मान लो दोस्त आपके साथ गपशप लगाना चाहते हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी अटेंशन को डाइवर्ट कर रही हैं, उससे बचना है। ये जो वक्त होता है, जैसे जैसे हम एग्ज़ाम के नज़दीक पहुंचेंगे, कब ये वक्त उड़ जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, और जो इसके अंदर तैयार होगा एग्ज़ाम के लिए वो बाजी मार जाएगा। तो हमें अभी से अपने वक्त को बचा के चलना है, अपने वक्त को गेनफुली डिप्लॉय करके चलना है और सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई करते चले जाना है। जितना अधिक टाइम और एनर्जी आप पढ़ाई पे लगाएंगे, उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी और उतना आप और लोगों से आगे निकलने में कामयाब होंगे। इसलिए जितनी डिफ्लेक्शंस आप कम करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, और जितना आप कंसंट्रेट करेंगे कंपटीशन के ऊपर, आपके लिए वो अच्छा रहेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।